Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ahmad Chaudhry. Today it's all about to tell you guys that why I'm here on YouTube. Just because a lot of friends have been asking me that why I have come on YouTube and why I'm trying to to be at social media. So simple. Today I want to let you know that why I am on YouTube. As you guys know that we have been living in 2020, and if I more emphasis, we are just about to step in 2021, and as the history witnesses, this is the most advanced and the most updated form of our world. From space to countries, from countries to villages, and from villages to towns, from provinces to districts, from districts to little cities, from there to towns, and from towns to villages. All the people have been connected very strongly. This is only just because of the media. This is only just because of the media. In this world of today, media has become, whether you term it a weapon or a source of immense knowledge, which transmits information on the basis of first preference by the people. For example, if media always keeps us informed about various happenings on different subjects around the world. For example, if something is happening in US, UK, or somewhere else in the world, we can know about it only through media. If I quote the example of current issue have been going on between Azerbaijan, Baku, and Armenia, Yerevan. The war have been going on between these two countries, and till this moment we know each and every aspect of the war, that how much loss both of the sides have bared till this moment. And as well, we know how the war was initiated, how the war began, who started it first, and how it was going on, and where it is reached now till this moment, how much loss both of the sides have bared. And we know every aspect of the war, what role which country have played. Beside this, I believe media plays always a vital role in the dissemination of information. This is why. This is the only reason I have selected this platform for the exchanging of my ideas, for the exchanging of opinions, for to get new opinions, for to try something new. So this is why I have tried. I have come on the YouTube channel, and beside that, I want to share my knowledge. If I am having a tiny knowledge, a little knowledge, that is only my purpose is to spread it. My purpose is to share it with everyone, especially for those people who cannot afford education. And I am especially for those people who are poor and from downtrodden class. I want to do something for those guys. And इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उर्दू में बात करते हैं. इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मैंने ग्रीनरी लगाई है बहुत ज़्यादा. दिस इज़ द ग्रास जो अभी लगाया गया है. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले लगाया गया है, और ये ग्रीनरी है. आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी की गई है, एंड आप देख सकते हैं. आजकल हमारे पास जो है ना, स्किन प्रॉब्लम्स और गले की प्रॉब्लम्स, बहुत किस्म की बीमारियां जो है ना वो हो गई हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे पास दरख्त बहुत कम है. दरख्तों की कमी की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दरख्तों की कमी की वजह से बारिश कम होती है. दरख्तों की कमी की वजह से जो ऑक्सीजन, जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह बिल्कुल हम इंसान, वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट स्पेंड आवर डेज, आवर लाइफ. हम मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हैं ऑक्सीजन के ऊपर. और ऑक्सीजन कौन बनाते हैं? ये भाई साहब. ऑक्सीजन ये भाई साहब बनाते हैं, ये लोग. ये दरख्त जो हैं, जितने भी प्लांट्स हैं,
ये ऑक्सीजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है हमारे पास, और ज़्यादातर लोगों को जो है बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हो रहे हैं, और ये सब दरख्तों की कमी की वजह से है। पूरी दुनिया में जहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले दुनिया और थी, अब दुनिया बदल चुकी है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है और इसमें बहुत ज़्यादा न्यू फैक्ट्रीज़ लग रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर बड़े लेवल के फैक्ट्रीज़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कारखाने तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर कारखाने भी कुछ लोग अगर इख्तलाफ करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास ट्रैक्टर, ट्राली, रक्शे, गाड़ियाँ, तंदूर घरों में यूज़ होते हैं हमारे डेली बेसिस पर। वो धुआं जितना भी है वो जाकर क्या करता है, स्पॉइल कर देता है सारी ऑक्सीजन को। तो फॉर सम रीज़न ऑक्सीजन जो है इट हैज़ बिन डिक्रीजिंग, अबेटिंग फ्राम आवर सोसाइटी, फ्राम आवर कंट्री। तो स्पेशली इट इज़ अबाउट इन माई सिटी, जैसे कि परिधन स्टेशन है, और यहाँ पर देखें तो दरख्तों की तादाद बहुत कम है। अगर हम इनको बढ़ाएं, अगर हम इनकी मतलब प्लांटेशन अगर मूवमेंट शुरू हो यहाँ पर, और छोटा सा तो एक शहर है, अगर इसमें थोड़ी बहुत प्लांटेशन मूवमेंट अगर कोई शुरू करे तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा और मैं उसको बुरी तरह सपोर्ट करूँगा, और जहाँ तक हो सका, जिस हिसाब से हो सका उस हिसाब से करूँगा, तो ताकि हमारे पास ये कम से कम ये बेसिक इशू जो है ये तो कम हो। जैसे कि बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पर, चलें शॉपकीपर्स जो हैं अगर वो नहीं कर सकते, बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पर, उनके पास बहुत बड़ा डाटा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उनके पास, स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उनसे एक एक दरख्त लगवाएं सब बच्चों से, तो तब भी हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है, जो प्लांटेशन की कमी की जो प्रॉब्लम है, जो प्लांट्स की कमी की प्रॉब्लम है दरख्तों की, तो वो तब भी पूरी हो सकती है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, एक बात इसमें जो है ना, सबसे बड़ी बात जो है वो मेरे नज़दीक वो ये है, देखें समटाइम्स हम दरख्त उगा देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। एक दरख्त उगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, 1000 दरख्त उगाना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1000 दरख्तों में से अगर आप 500 दरख्तों को भी ग्रो कर लेते हैं वो बड़ी बात है। दरख्त लगाना ज़िम्मेदारी नहीं है, दरख्त को उगाना, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी ग्रोइंग, उसका ख्याल रखना ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ख्याल रखें इन चीज़ों का तो होप्स हो कि ये सारे मसले मसाइल जितने भी हैं ये हल हो सकते हैं हमारे। और ये बहुत ही सीरियस इशू है, हम आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हमारे पास दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, और हवा में देखो मिट्टी कितनी होती है हर वक्त, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है यहाँ पे हवा में। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, और आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे जहाँ पर दरख्त होते हैं ना वहाँ पर सफाई होती है, तो इट इज़ नेचुरल। और जहाँ पर दरख्त होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। जहाँ पर दरख्त होते हैं वहाँ पर ज़मीन में पानी की मिक़दार भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक दरख्त ना होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो ये इशू जो है ये भी हल होना चाहिए। और इसके अलावा गरीब लोग हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके मसले मसाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसा हो कि देखें फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ एक कदम आओ तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कही थी कि अल्लाह के साथ तजारत करने से जो है ना रिस्क बढ़ता है। ये आप सल्लम ने कसम खा के कहा था। तो कहाँ है वो सारी बातें, हमारी अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। बीइंग ए मुस्लिम हमारी ये ज़िंदगी में ना ये सारी बातें नज़र नहीं आती, झलक नहीं आती। और अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, अगर हर बंदा एक बच्चे की एजुकेशन की, जो भी वेल सेटल्ड फैमिलीज़ हैं, वो अगर एक बच्चे की एजुकेशन का अगर ख़र्च उठाएं, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में कोई भी एक भी बच्चा जो है ना वो एजुकेशन के बगैर नहीं रह सकता। हमें मोस्टली ना झूठ बताया जाता है कि पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान की फ़लानी चीज़ भी 1 नंबर, फ़लानी भी 1 नंबर, हम दुनिया में बहुत टॉप पर जा रहे हैं, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। ये सब झूठ बोला जाता है हमसे। देखें, ये तो फैक्ट है कि हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। आई लव पाकिस्तान एंड
मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा हुब्बल वतन, पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई हुब्बल वतन है तो दिस इज़ अहमद चौधरी। तो आई लव माई कंट्री, लेकिन जो फैक्ट्स हैं ना हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। देखें, मैं डेली बेसिस पर इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ। यू नो, आई हैव बीन टीचिंग टू सम ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। आई हैव बीन टीचिंग दैम इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब से मैं ना 2-3 दिन पहले, मोस्टली मेरी पाकिस्तान के हवाले से बात होती रहती है, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं वेयर इज़ पाकिस्तान, ठीक है। तो उनको शो करना पड़ता है कि भाई पाकिस्तान फ़लानी जगह पर है। हमें बताया जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान को नहीं जानता है। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में दुनिया में तकरीबन मुल्क ही पाकिस्तान को नहीं जानते, उनकी अवाम पाकिस्तान को नहीं जानती है। अगर आप यूरोप में चले जाएं, अगर आप अमेरिकन साइड पे चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं, तो यहाँ पर तो लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान नाम की भी कोई चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया को दिया क्या। और अगर आप वहीं पर जाएं तो आपको नज़र आएगा इंडिया की डोमिनेंस, इंडिया की हेजमनी। इंडिया को लोग नाम से जानते हैं, इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के सेलिब्रिटीज़ को, इंडिया के हीरोज़ को लोग दुनिया में नाम से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को नहीं जानते। ये सब झूठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सॉफ्ट इमेज है ही नहीं दुनिया में, हमारे बारे में कोई पढ़ना या कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन की तरफ आएँ। अब देखें, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो स्कूल्स को किया गया, एजुकेशन को किया गया। चलें ठीक है, ये सारी बातें चलें एक्सेप्टेबल हैं। अब मुझे ना जो चीज़ समझ नहीं आई ना, वो सबसे बड़ी चीज़ वो ये थी कि देखिए हमारी ब्रेन वॉशिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है और हम कहाँ पे आके खड़े हैं। मतलब अलमिया तो ये है कि एक सोसाइटी है, वहाँ पर टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको टेंशन नहीं है कि बच्चों की तालीम ख़राब हो रही है। ये मतलब मैंने पूरे पाकिस्तान में हो सकता है पेरेंट्स को टेंशन हो, आई माइट बी रॉन्ग, बट यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, एवरी फैमिली। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू नो majority of the families, but I'm taking out some of the families, you know, who have been caring after, looking after their kids' education. I'm not talking about that. मैं मेजॉरिटी ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर मुझे एक प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया कि जहाँ पर किसी माँ बाप ने कहा हुआ कि हमारे बच्चों की एजुकेशन ख़राब हो रही है। तो ये मतलब हमारी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कहाँ गई। और इमरान खान साहब जो हैं हमारे द प्राइम मिनिस्टर, द वेरी प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखें ब्लंडर्स हर तरफ से बच रहे हैं। अब देखें आज ये प्रूव हो गया कि हम नौकरी के लिए पढ़ते हैं। मतलब मेरे नज़दीक मैं इस चीज़ के पूरी तौर पर 200% इस चीज़ के अगेंस्ट था कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। मैं बच्चों को प्रमोट करने के हक़ में नहीं था। देखें अब बच्चों को प्रमोट पे क्यों किया गया। अगर एक बच्चा जिसने 9th क्लास पढ़ी ही नहीं, उसको आप 10th में किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, 9th में से आगे किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। देखें ये तो साबित हो गया कि कल को बच्चों को जॉब में एज का इशू आएगा। सिर्फ एक यही बात थी जिसकी वजह से बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। अदरवाइज़ बच्चों को प्रमोट करने का कोई दूसरा रीज़न या कोई दूसरी वजह मेरे सामने कोई भी नहीं है। मेरे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, मेरी तमाम एकेडमिक्स करियर मुझे यही सिखाता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। वो यही है कि आपको 28 साल या 26 साल की उम्र तक जो है ना आपको ख्याल रखना है, आपकी उम्र ना निकल जाए। मेरे ओवरऑल करियर में मैंने यही चीज़ ही एक्सपीरियंस की कि लोग भागम भाग लगी हुई है पाकिस्तान में, अफरा तफरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस, आई वुड इवन प्रेफर टू से। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सल्लम ने कहा था कि एजुकेशन हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और इल्म मतलब इल्म के सिर्फ इल्म पे आप सल्लम की पता नहीं कितनी सैकड़ों हदीसें हैं, लेकिन हमारे पास इल्म की वैल्यू ये है कि कहीं हमारी उम्र ना निकल जाए और 9th प्रमोट कर दी जाए, लिहाजा बग़ैर पढ़े एक लफ्ज़ भी 9th को प्रमोट कर दिया जाए। मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली स्टूपिड और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये हो गया है तो इसके रिज़ल्ट्स आने वाली जनरेशन्स के ऊपर हमने थोप दिया है। आने वाली जनरेशन्स जो हैं इसका बर्डन उठाएंगी। ये भी
मुकम्मल तौर पर ये गलत फ़ैसला था और एजुकेशन को स्पेशली टारगेट किया गया है पाकिस्तान में, ये नहीं होना चाहिए। जितने SOPs मेरे ख़्याल से स्कूल्स में फ़ॉलो किए जाते हैं वो बाहर फ़ॉलो नहीं किए जाते। अगर आप देखें कि एजुकेशन मतलब मेरे नज़दीक अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं, देखें वो लोग जो यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने आ रहे थे वो कहीं पर सुकून से बैठे हुए थे एक जगह पर, SOPs को फॉलो कर रहे थे, उनके एकेडमिक्स की जो कंटिन्यूएशन थी वो चल रही थी और वो पढ़ रहे थे, मतलब एक अच्छा सिलसिला चल रहा था, बच्चे बैठे हुए थे, इल्म चल रहा था, पाकिस्तान का भी भला था, बच्चों का भी करियर सिक्योर था और वो ईच एंड एवरीथिंग वाज गोइंग एट इट्स बेस्ट। लेकिन क्या हुआ, हमने सारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया और क्या कहा कि गली में जाकर भाई आप खेलें, जहाँ पर रश है वहाँ पर जाके आप देखें, लड़ें, जो लोग लड़ रहे हैं उनके पास जाके खड़े हों, देखें कि भाई वो क्या कर रहे हैं। अभी कल मैं यहाँ से मतलब नॉर्मली इट हैपन्स कि मैं कहीं से जा रहा था, वहाँ पे मैंने देखा लड़ाई हो रही है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो मतलब आप देख लें कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मैं किसी ख़ास जगह को टारगेट नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हर जगह पर रश लगी हुई है, हर जगह पर लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। वही स्टूडेंट्स जो अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, अच्छी जगह पर बैठे हुए थे, उनको वहाँ से निकाल के हमने रोडों पे ला के खड़ा कर दिया, लो भाई यहाँ पे घूमो, क्योंकि स्कूल में तो कोरोना वायरस है वो आपको हर्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना आप पब्लिकली घूमो, सबके साथ जाकर फिरो, तो आपको यहाँ पर कोरोना वायरस कुछ नहीं कहने वाला। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो हमने कंप्लीट मुकम्मल तौर पे भुला दी है। माँ बाप की भी ब्रेन वॉशिंग, क्योंकि माँ बाप भी इसी सिस्टम में से पढ़े और उनकी पिछली फोर फादर्स भी इसी सिस्टम में से पढ़े और अब हम पढ़ रहे हैं और हमारे आने वाले, देखो हम जिस तरह हम लोगों का बेड़ा गर्क किया गया, अब हमारी आने वाली नस्लों की देखो ब्रेन वॉशिंग किस तरह की जा रही है, उनको क्या एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। आई एम फीलिंग सो सॉरी, लेकिन हमारे मुल्क का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना, एजुकेशनल ढांचा जो है, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। कहते हैं अगर किसी मुल्क के साथ दुश्मनी है ना, उससे तुम्हें जंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एजुकेशन के ऊपर अटैक करो, उसकी एजुकेशन ख़त्म कर दो। वहाँ के लोग वैसे ही जाहिल हो जाएंगे, जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी वहाँ पे लोग क्या जाहिल हो जाएंगे ना। देखो वहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल व्हाट हैव बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो इंजीनियर बन रहे हैं वो कैसे इंजीनियर बन रहे हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो कैसे डॉक्टर्स बन रहे हैं। पाकिस्तान में एक सुर का डॉक्टर नहीं है, एक अच्छा डॉक्टर नहीं है पाकिस्तान में। मतलब व्हाट शुड आई से मोर। अब जहाँ पर चले जाएं, किसी बीमारी का किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा है। अब देखें मैं नमल में पढ़ता था, वहाँ पे